નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જે છે લેખન વિશે અભ્યાસ કરીશું. અત્યાર સુધી આપણે વ્યાકરણના ઘણા બધા પોઈન્ટ જોયા, એમાંથી તમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હશે. હવે આપણે લેખન વિશે અભ્યાસ કરીશું. લેખન જે છે એ આપણા પેપરની અંદર જે છે સૌથી વધારે માર્કવાળો વિભાગ છે. તેની અંદર જ આપણે માર્ક ઓછા આવે છે. લેખનની અંદર જે છે એ આપણા મૌલિક વિચાર રજૂ કરવાના હોય છે. પણ આ મૌલિક વિચારો રજૂ કરવા માટે ને વાત રજૂ કરવા માટે પણ આપણી પાસે એક કળા હોવી જોઈએ. એ કળા આપણે વિકસાવવાની છે. કેટલીક વસ્તુઓ જે છે એ ધ્યાન રાખીએ તો આપણે લેખકની અંદર પણ સારા એવા માર્ક્સ મેળવી શકીએ છીએ. લેખન કાર્યની અંદર પત્ર લેખન, કહાની લેખન, વૃત્તાંત લેખન, નિબંધ લેખન, આ બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. તો લેખનની અંદર પણ ઘણા બધા માર્ક્સ હોય છે. 20થી 25 માર્ક્સ સુધી આપણે જે છે એ લેખન કાર્ય પૂછાતું હોય છે. પણ મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને મૌલિક વિચાર તો બિલકુલ રજૂ કરતા જ નથી આવડતા. તેઓ તો માત્ર જે છે પ્રશ્નોના જવાબ ગોખી અને તૈયાર કરીને પ્રશ્નો જવાબ લખી આવે છે. નથી એમનામાં વ્યાકરણની કોઈ સમજ હોતી. તો આપણે જે છે એ આજે આપણે આ જે છે લેખન કલા જે છે એની અંદર આપણે કેવી રીતે આપણા મૌલિક વિચારો રજૂ કરી શકીએ અને કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખી શકીએ, એ હવે લેખન કાર્ય જે છે કરતાં આપણે શીખીશું. જેની અંદર આજે આપણે વૃત્તાંત લેખન વિશે માહિતી મેળવવાની છે. વૃત્તાંત એટલે શું? તો વૃત્તાંત એટલે ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટના. ઘટના પણ કહી શકાય છે. વૃત્ત એટલે ઘટિત, અથવા તો એને ઇતિવૃત્ત પણ કહેવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં એને અહેવાલ કહેવામાં આવે છે, હિન્દીમાં એને વૃત્તાંત કહેવામાં આવે છે અને અંગ્રેજીમાં એને રિપોર્ટ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે આ જે છે વૃત્તાંત જે છે એને સમજવાનો પ્રયાસ કરશું. વૃત્તાંત એટલે શું? તો તમારી સામે કોઈ ઘટના ઘટિત થઈ છે, અથવા તમે કોઈ કાર્યક્રમ નિહાળ્યો છે, તો એ કાર્યક્રમનું શરૂથી લઈને અંત સુધીનું જે વર્ણન હોય છે તેને વૃત્તાંત કહેવામાં આવે છે. તમારે કોઈ ઘટના વિશે લખવાનું છે. તમારી આંખ સામે કોઈ ઘટના બની છે, કોઈ કાર્યક્રમ તમે જોયો છે, તો એની શરૂથી લઈને અંત સુધીની માહિતી પ્રાપ્ત કરવી તેને આપણે વૃત્તાંત કહેવામાં આવે છે. જો તમે કોઈ પત્રકાર ક્ષેત્રમાં જાઓ તો તમારે આ ઘટનાઓ વિશે વર્ણન કરવાનું હોય છે. તમે છાપામાં જુઓ છો કે ઘણા બધા જે છે એ અહેવાલો આપેલા હોય છે, વૃત્તાંત આપેલા હોય છે. એમાં ઘટના સ્થળ જે છે એનું નામ અને એનું વર્ણન જે છે ખૂબ જ આકર્ષક શબ્દોમાં કરેલું હોય છે. તો આપણે જે છે એ વાંચીએ ત્યારે આપણને પણ એ ઘટના આપણી આંખ સામે જાણે ઘટિત થઈ હોય એવો અહેસાસ થાય છે. એટલે આની અંદર જે છે એ શબ્દોનું ઘણું મહત્ત્વ હોય છે, જેની અંદર આપણે વર્ણન જે છે એ કલા શીખવાની હોય છે. કોઈ ઘટના બની છે, કોઈ કાર્યક્રમની શરૂથી લઈને અંત સુધીની માહિતી જે છે એ આપણે આકર્ષક શબ્દોમાં રજૂ કરવાની હોય છે, જેથી કરીને વાચક વર્ગને તેની આંખ સામે જ ઘટના બની હોય એવો અહેસાસ થાય છે. તો વૃત્તાંત એટલે આપણે સમજી લઈએ. સૌથી પહેલાં વૃત્તાંત એટલે થાય છે वृत्तांत यानी घटित घटना, यानी कि हमारे सामने जो घटना घटित हुई है, किसी कार्यक्रम के बारे में हमें शुरू से लेकर अंत तक या किसी घटना के बारे में शुरू से लेकर अंत तक लिखना होता है. उसमें हमें किस बातों का ध्यान रखना होता है? वृत्तांत यानी घटना या घटित हुई घटना का वर्णन हमें करना होता है. इसे हमें इतिवृत्त भी कहते हैं. इतिवृत्त यानी कि जो भूतकाल में घटना घटित हुई थी उसके बारे में हमें फिर से लिखना होता है. यानी कि कार्यक्रम का शुरू से लेकर अंत तक का वर्णन जो होता है उससे हम वृत्तांत कहते हैं. वृत्तांत को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो वृत्तांत में सबसे पहले विषय को
सबसे पहले समझ लेना चाहिए। उसमें हकीकत का वर्णन करना है, यहाँ काल्पनिक बातों का वर्णन नहीं करना होता। काल्पनिक हम निबंध में क्या करते हैं कि निबंध में हमें जो मन में आए मन चाहा हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वृत्तांत में हकीकत का वर्णन करना है, यानी कि जो घटना घटित हुई है उसके बारे में हमें हकीकत को दर्शाना होता है। यहाँ काल्पनिक या अनावश्यक बातों का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ हमें काल्पनिक बातें बिल्कुल नहीं लिखनी है और मुहावरे का प्रयोग भी नहीं करना है। हम कई बार व्यंग कसते हैं निबंध में या किसी जो है वृत्तांत में किसी कहानी में हम व्यंग कसते हैं। ऐसा व्यंग या मुहावरा हमें नहीं लिखना है। यहाँ पर जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। मुहावरे का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है और विषय को भली भांति समझ लेना है। जैसे कि आपकी पाठशाला में स्वतंत्रता दिन मनाया गया है, उसके बारे में 50 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो सूचना होती है उसके बारे में भली भांति समझ लेना है। स्वतंत्रता दिन के बारे में हमें लिखना है तो शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या कार्यक्रम स्कूल में हुए थे उसके बारे में लिखना होता है। दूसरी बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वृत्तांत में स्थान का बड़ा महत्व है, समय का बड़ा महत्व है और दिनांक या किसी व्यक्ति विशेष का महत्व होता है। जो कार्यक्रम हुआ है उसमें सबसे पहले स्थान या जो घटना घटित हुई है, कार्यक्रम हुआ है, उसमें कौन सा स्थान है तो स्थान का हमें उल्लेख करना है, समय का उल्लेख करना है, दिनांक का उल्लेख करना है और कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसमें कौन से व्यक्ति विशेष या मेहमान आए थे उसका उल्लेख करना है। और एक सबसे पहले आकर्षक शीर्षक देना होता है। जिस प्रकार हम कहानी में कोई आकर्षक शीर्षक देते हैं या उसको हेडिंग देते हैं, उसी प्रकार हमें वृत्तांत में भी एक आकर्षक शीर्षक देना होता है। यदि हम शीर्षक देंगे, आप अखबारों में देखते हैं बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी हुई होती है जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है और हम उसको पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार वृत्तांत में भी एक शीर्षक देना होता है। शीर्षक देने से क्या होगा कि जो पढ़ने में हमें आसानी रहती है कि इसमें किसके बारे में लिखा गया है, इसलिए आकर्षक शीर्षक देना होता है। भाषा, वृत्तांत की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के मुहावरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। वृत्तांत की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और मुहावरे वाले शब्द हमें नहीं लिखने चाहिए। वृत्तांत में हमें इस बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है वृत्तांत लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगला है हमारा क्रमबद्धता। वृत्तांत में हमें क्रमबद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्रम यानी कि किसी कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक जो घटनाक्रम होता है उसमें कोई उलटफेर नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी कार्यक्रम की शुरुआत शुभारंभ से होती है, दीप प्रागट्य से होती है, या फिर जो मुख्य मेहमान है वो प्रवचन देता है या उसका वक्तव्य आता है, अंत में समापन किया जाता है। इस क्रम को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। पहले समापन करने के बाद अंत में उद्घाटन नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले दीप प्रागट्य या उद्घाटन से किसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इसलिए हमें क्रमबद्धता का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और वृत्तांत में शब्दों की मर्यादा होती है। वृत्तांत में क्या होता है, शब्दों की मर्यादा होती है, यानी कि 9वीं कक्षा में वृत्तांत जो है वो 50 शब्दों में लिखना होता है। वैसे तो 80 शब्दों में लिखा जाता है वृत्तांत, लेकिन 9वीं कक्षा में 50 शब्दों में लिखा जाता है, यानी कि 2 या 3 परिच्छेद में हमें लिखना होता है। 2 परिच्छेद में हमारे 50 शब्द हो जाते हैं। इसलिए यहाँ शब्दों की मर्यादा होती है। हमें ज़्यादा वर्णन नहीं करना है किसी घटना का, हमें 50 शब्दों में ही लिखना होता है। तो यहाँ शब्दों की मर्यादा होती है, इसलिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिखनी है। 50 शब्दों में हमें कम से कम शब्दों में घटना का पूरा वर्णन करना होता है। 50 शब्द से अधिक ना हो जाए, हमारा वृत्तांत जो है वह निबंध ना हो जाए, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे शब्दों की मर्यादा 50 है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक वर्णन करना होता है। तो यहाँ पर हमें किसी कार्यक्रम की शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें जो है वह लिखनी होती है, इसलिए हमें शब्दों की मर्यादा का पालन करना होता है। इस प्रकार वृत्तांत जो है वो हमारी आंखों के सामने घटित हुई घटना जो है उसके बारे में या किसी कार्यक्रम के बारे में शुरू से अंत तक जो बातें लिखी जाती है उसे हम वृत्तांत कहते हैं। वृत्तांत यानी घटना जो है वह बीत चुकी है। यहाँ पर वर्णन जो है भूतकाल में लिखना होता है। भूतकाल में क्यों? क्योंकि घटना घटित हो चुकी है, हमने कार्यक्रम देख लिया है, किसी घटना को देख लिया है, इसलिए इसका वर्णन किस में आएगा? भूतकाल में आएगा। इसलिए हमें यहाँ वर्तमान काल में वाक्य रचना नहीं करनी है, भविष्य काल में वाक्य रचना नहीं करनी है, इसका वर्णन भूतकाल में होना चाहिए। हम एक अहवाल के द्वारा, इसका वृत्तांत के द्वारा हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। आपके शहर में विश्व योग दिन मनाया गया था, उसके बारे में 50 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। आपके शहर में विश्व योग दिन मनाया गया था, उसके बारे में 50 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक आकर्षक शीर्षक देना है, विषय के अनुरूप एक शीर्षक देना है। तो यहाँ विश्व योग दिन पर्व, क्योंकि आपके शहर में विश्व योग दिन मनाया गया, तो हम शीर्षक क्या देंगे? विश्व योग दिन पर्व। तो सबसे पहले हमें दिनांक लिखनी होती है, 21 जून 2019। हमें सबसे पहले दिनांक लिखनी है। तो दिनांक लिखते समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि विषय के अनुरूप दिनांक होनी चाहिए। तो यहाँ विश्व योग दिन कहाँ मनाया गया था? तो 21 जून के दिन मनाया गया था। तो सबसे पहले 21 जून 2019 सुरेंद्र नगर। और स्थान का महत्व भी बहुत है। यह स्थान कौन सा है, कहाँ पर यह एक विश्व योग दिन मनाया गया था? तो 21 जून 2019 सुरेंद्र नगर। यह कार्यक्रम कहाँ मनाया? आपके शहर में कहा गया है। आपके शहर में यानी आप जहाँ रहते हैं उस शहर का हमें नाम लिखना होता है। 21 जून 2019 सुरेंद्र नगर में यह कार्यक्रम मनाया गया था। तो सबसे पहले हमें जो दिनांक है 21 जून 2019 सुरेंद्र नगर ऐसा लिखना है।
योग के साथ हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। योग हमारी ऋषियों की परंपरा है, लेकिन आज लोग योग को भूल रहे हैं। इसलिए 21 जून के दिन विश्व योग दिन मनाया जाता है। सबसे पहले हमें तारीख और दिनांक लिखने के बाद विषय की शुरुआत करनी होती है। तो यहाँ योग दिन है, इसलिए हमें क्या लिखना है? योग के साथ हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। योग हमारे ऋषियों की परंपरा है, लेकिन लोग इसका महत्व भूल गए हैं। इसलिए हम हर साल 21 जून के दिन विश्व योग दिन इसलिए 21 जून के दिन विश्व योग दिन मनाया जाता है। तो यह हमारी शुरुआत हो गई। और जब हम विषय का प्रारंभ करते हैं तब हमें परिच्छेद करना होता है, जहाँ भाव बदल जाता है। हम यूं ही परिच्छेद नहीं कर सकते, जब कोई भाव बदल जाता है तभी हमें परिच्छेद करना होता है। तो यहाँ से हमारा वृत्तांत का विषय शुरू हो जाता है। हर साल सुरेंद्रनगर शहर में विश्व योग दिन बड़ी धाम-धूम रही। इस साल सुरेंद्रनगर शहर में विश्व योग दिन की बड़ी धाम-धूम रही। इस विश्व योग दिन में शहर के सभी पाठशालाएं, कचहरियों के सदस्य तथा सामाजिक संस्थाओं ने उत्साह से भाग लिया। सभी लोग सुबह 6 बजे MP शाह आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में, जो यहाँ स्थान और समय का बड़ा महत्व होता है। स्थान तो हमने दर्शाया था कि सुरेंद्रनगर शहर, और कितने बजे, समय का भी बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर विश्व योग दिन में किन किन लोगों ने भाग लिया था? तो शहर की सभी पाठशालाएं, कचहरियों के सदस्य तथा सामाजिक संस्थाओं ने उत्साह से भाग लिया था। और सभी लोग सुबह 6 बजे कहाँ एकत्रित हुए थे? तो MP शाह आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के मैदान में आ पहुँचे थे। सबसे पहले सुरेंद्रनगर शहर के सांसद श्री महेंद्र भाई ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होता है उसका शुभारंभ किया जाता है। यहाँ पर अतिथि विशेष का भी उल्लेख हमने किया है। यहाँ पर हमारे सुरेंद्रनगर शहर के सांसद श्री महेंद्र भाई ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और आगे का हम यहाँ पर देख लेते हैं। महेंद्र भाई मुंजपरा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। फिर योग गुरु बाबा रामदेव के शिष्यों ने योग का महत्व समझाया। फिर एक साथ समूह में सूर्य नमस्कार किया गया। एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया। कुछ आसन भी किए गए
और अंत में सभी लोगों ने हर सुबह योग करने की समूह में प्रतिज्ञा ली और सभी ने औषधि से बना हुआ काढ़ा पिया। 9 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। विश्व योग दिन का यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। तो कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत में हमें समापन किस तरह से हुआ है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं, हर साल सुरेंद्रनगर शहर में विश्व योग दिन की बड़ी धामधूम रही। इस विश्व योग दिन में शहर के सभी पाठशालाएं, कचहरियों के सदस्य तथा सामाजिक संस्थाओं ने उत्साह से भाग लिया। सभी लोग सुबह 6 बजे MP शाह आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के मैदान में आ पहुँचे थे। सबसे पहले सुरेंद्रनगर के सांसद श्री महेंद्र भाई ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभा को संबोधित किया। उसके बाद सभा को संबोधित किया। फिर योग गुरु बाबा रामदेव के शिष्यों ने योग का महत्व समझाया। फिर एक साथ समूह में सूर्य नमस्कार किए गए और कुछ आसन भी किए गए और अंत में सभी लोगों ने हर सुबह योग करने की समूह में प्रतिज्ञा ली और सभी ने औषधि से बना हुआ काढ़ा पिया और 9 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। विश्व योग दिन का यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। तो हमें वृत्तांत में क्या करना है, सबसे पहले दिनांक लिखनी है, स्थान लिखना है, उसके बाद जो विषय होता है उसके बारे में बहुत थोड़ी सी चर्चा करनी है। जैसे कि स्वतंत्रता दिन के बारे में लिखना है तो हमें शुरू में क्या लिखना है कि हम भारत देश महादेश है, उसकी स्वतंत्रता की गाथा सुवर्ण अक्षरों में लिखी गई है। कई लोगों ने बलिदान दिया तभी हमें स्वतंत्रता मिली है। हर साल, और यहाँ पर लिखना है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी पाठशाला श्री SN विद्यालय में हमने स्वतंत्रता दिन पर्व की उजवनी की। तो यहाँ पर हमने जो विषय जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। फिर कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो संबोधन किया जाता है या फिर कितने बजे कब, इस सारी बातों का वर्णन करना है और अंत में कार्यक्रम का समापन जो है वो होता है, कितने बजे होता है और अंत में कार्यक्रम की सफलता का रहस्य भी बताना होता है। तो इस प्रकार वृत्तांत लेखन जो है वह 2 परिच्छेद या 3 परिच्छेद में लिखना होता है। आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है कि हमें किन किन बातों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं और उसके द्वारा जो है वृत्तांत लेखन सीख सकते हैं। आपको और भी वृत्तांत लिखने हैं, आपके कॉपी में लिख लेना। अगले वीडियो में हम नए एक पॉइंट के साथ फिर से उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ।